Hello guys, I'm your friend and FSS Guide Sagar Shirke sign in and thank you so much for watching this video and I'm your host and those Sagar Shirke FSS Guide presents the case studies of food industries. ठीक है तो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जो रेगुलेशंस जो है तो उसके अराउंड जो हम केस स्टडीज है वो आज हम सीखने वाले हैं आई एम योर होस्ट एंड सागर शिर्के FSS गाइड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट जो अभी हम शुरू करने वाले हैं वो है फूड रेगुलेटरी पोर्टल्स। तो देखिए फूड स्टैंडर्ड्स, food imports, safe food practices, enforcement and food testing, capacity building। ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो इन एफएसएस है। जो फूड रेगुलेटरी पोर्टल है उसके अराउंड ये सारी चीजें हैं। देन फूड रेगुलेटरी अफेयर्स देख सकते हैं तो फूड लेबलिंग कंप्लायंसेस हैज केस स्टडी ऑफन एग्जामिन एस्टेंस says their food products have filed have failed to comply with labeling regulations। labeling regulations है उसके अंदर फेल करते हैं काफी सारी कंपनीज कंप्लायंस करने में और मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इनएक्यूरेट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स लेते हैं। ठीक है अंडरस्टैंडिंग these cases help professionals grasp the importance of strict adherence to labeling requirements and the consequences of non compliances। तो देखिए फूड रेगुलेटरी compliances के अंदर फूड सेफ्टी incidents, analysis of food safety incidents such as outbreaks of the foodborne illnesses or contamination issues illustrates the role of regulatory agencies in investigating and managing such crises। Case studies in this area highlight the importance of preventive measures, traceability, and regulatory responses to ensure public health and safety। ठीक है तो ट्रेसेबिलिटी है वो इंश्योर करती है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की कहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये कर रहा है, कहाँ पर आपका प्रोडक्ट जा रहा है और क्या आपका उसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं। तो देखिए फूड रेगुलेटरी अफेयर्स, द रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑफ फूड novel foods case studies focusing on the processes of novel foods and ingredients can shed light on the complexities of regulatory submissions। ठीक है और जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से नॉवेल फूड एडिटिव्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स ये भी इंक्लूड किया गया है एंड अंडरस्टैंडिंग these cases helps professionals navigating the regulatory pathways and compliance requirements for bringing new products to market। तो देख सकते हैं इसके अंदर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। हम सीखने वाले हैं केस स्टडीज एग्जामिनिंग रेगुलेटरी challenges in international trade such as differences in food systems standards between countries or regions highlight the importance of regulatory harmonization efforts। So देखिए these studies explore how global standards, example Codex Alimentarius and the trade agreement influences regulatory frameworks and market access। तो ये सारी चीजें अभी हम एक वन बाय वन सीखने वाले हैं। और रिकॉल मैनेजमेंट केस स्टडीज इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट रिकॉल्स ड्यू टू सेफ्टी or regulatory issues provide insights into recall protocols, communication strategies, and legal implications for companies। Understanding these cases help professionals develop robust recall plans and crisis management strategies। ठीक है देन सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इसके अंदर देख सकते हैं कि increasingly case studies are focusing on regulatory frameworks related to sustainability and ethical sourcing and corporate social responsibility in the food industries and these studies explore regulations related to organic fortification, fair trade practices, animal welfare standards, and environmental sustainability। ठीक है तो अभी देखिए हम शुरू करने वाले कि फूड सेफ्टी इंसिडेंट हुआ था साल्मोनेला आउटब्रेक इन पीनट प्रोडक्ट। तो केस स्टडी हम देखने वाले इसके 2008 एंड 2009 साल्मोनेला आउटब्रेक लिंक्ड टू पीनट प्रोडक्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली देखिए डिस्क्रिप्शन। दिस केस स्टडीज एग्जामिन्स हाउ कंटामिनेटेड पीनट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पीनट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका पीसीए जो है led to widespread salmonella outbreaks, resulting in hundreds of illness and severe and several deaths. The outbreak prompted one of the largest food recall in United States history and raised significant concern about food safety practices and regulatory oversights। ठीक है तो ये 2008 और 2009 के अराउंड ये हुआ था एंड इसके अंदर की पॉइंट्स देख सकते हैं कि रेगुलेटरी फेलियर्स द केस हाइलाइट्स gaps in regulatory oversight as PCA continued to distribute product despite known contamination। ठीक है रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस इसके अंदर क्या हुआ, इट ट्रिगर्ड रिफॉर्म्स सच एज फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट एफएसएमए
इन 2011 जो ओबामा के अंदर जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 2011 में, which aim to prevent a similar incident through stricter regulations on food safety practices, preventive controls and enhanced FDA inspection authority. तो देखिए इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री क्या हुआ, द इंसिडेंट अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन एंड द रोल ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। तो ये यहाँ पर पूरा ओवरऑल खुलासा हो गया था 2008-9 में, ठीक है। और उसी वक्त जिस तरीके से ये हुआ था, सेवरल डेथ्स हुई थी, और ओबामा जी ने जिस तरीके से डिसीजन लिया था कि एफएसए में एक्ट लागू करने का, तो थ्रू आउट दिस साल्मोनेला आउटब्रेक, तो ये एक इंसिडेंट है जिससे काफी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे एक आउटब्रेक को कैसे कंट्रोल किया गया, क्या क्या सीखा गया उस आउटब्रेक से, तो ये आप वहां से सीख सकते हो। देन देखिए फूड लेबलिंग कंप्लायंसेस, तो देखिए मिसलीडिंग एलर्जन लेबलिंग, तो देखिए केस स्टडी है फूड प्रोडक्ट मिस लेबल्ड विद एलर्जन इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन। देखिए इन दिस केस causes focuses on a scenario where a food manufacturer mislabeled a product, failing to declare allergens such as peanuts or gluten correctly. This resulted in allergic reactions among consumers and regulatory scrutiny. तो देखिए इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इट हाइलाइट्स the legal obligations under food labeling regulations, FDA in the United States, European Union regulations, to accurately label allergens and ingredients. So देखिए consumer impact क्या हुआ था, the importance of accurate labeling in preventing allergic reaction and maintaining consumer trust, ठीक है। enforcement action क्या हुई थी, consequences for non compliances and including product recalls, fines and reputational damage यहाँ पर हुआ था काफी ब्रांड्स को। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए कि लेसन्स learn for food manufacturers regarding ingredients and traceability, labeling audits and compliances with labeling law to ensure consumer safety। तो यहाँ पर सेफ्टी इंक्रीज हुई है। तो देखिए नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, जो जीएमओ रेगुलेशन इन यूरोप, ये कैसे आया कि केस स्टडी है रेगुलेटरी चैलेंजेस फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है जीएमओस इन द यूरोपियन यूनियन। Description है these case studies explore the regulatory framework governing GMOs in the United EU, European Union, where stringent regulations. So 1 minute, just I'll come back with the one section that is a regulation required a rigorous safety assessment and a labeling requirement for GMO derived product. It construct with approach in other regions such as the United States and where the GMOs are more widely accepted. तो देखिए की पॉइंट्स क्या है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया था कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन जो डायरेक्टिव निकला 2001/18/EC, तो रिक्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट ट्रेसेबिलिटी एंड लेबलिंग ऑफ जीएमओ। तो देखिए इसके अंदर ट्रेड इंप्लीकेशंस क्या हुए थे कि डिफरेंसेस इन रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस फॉर जीएमओ प्रोडक्ट्स। तो देखिए पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन इसके अंदर ये था कि द इन्फ्लुएंस ऑफ public concerns about GMO safety on regulatory decision making। तो ठीक है ग्लोबल इम्पैक्ट देख सकते हो कि efforts towards regulatory reform, harmonization, example Codex Alimentarius and their implications for global food trade and harmonized standards। देन है फूड फ्रॉड, हॉर्स मीट जो स्कैंडल हुआ था इन यूरोप में, उसके बारे में अभी अभी हम चर्चा करेंगे कि ये केस स्टडी है द 2013 हॉर्स मीट स्कैंडल इन यूरोप। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ये है कि दिस केस स्टडी examines how horse meat was fraudulently substituted for beef in various processed meat products sold across several European countries। The scandal originated from the complex supply chain involving multiple countries and suppliers, highlighting vulnerabilities in food supply chain, transparency and regulatory oversights। तो इसके अंदर की पॉइंट्स है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट्स देखते हैं कि इनएडिक्वेसी इन ट्रेसेबिलिटी एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स विद द यूरोपियन यूनियन फूड सप्लाई चेन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर ट्रस्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड ऑथेंटिसिटी है। एनफोर्समेंट जो है एक्शन, तो देखिए इसके अंदर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट रिकॉल्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दिस इन्वॉल्व। तो देखिए इंडस्ट्री रिस्पॉन्सेज क्या होगा कि चेंज इन सप्लाई चेन दिया गया, management practices and calls for stricter regulatory controls to prevent food fraud incidents। तो यहाँ पर वो फूड फ्रॉड इंसिडेंट्स के अराउंड वो किया गया क्योंकि जो हॉर्समिट स्कैंडल है यूरोप का वो काफी बड़ा स्कैंडल था, उसके बारे में भी आप चर्चा या फिर मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
लेकिन इससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट बना था क्योंकि उसका जो टेंडर मीट है, तो वो एग्ज़ैक्टली आइडेंटिफ़ाई हो नहीं रहा था और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी एनहांसिंग दे रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन जिस तरीके से ये स्कैंडल बाहर आया कि हॉर्स मीट जो इसके अंदर मिलाया गया है, तो दैट वाज़ लाइक वेरी डिज़ास्ट्रस फॉर यूरोपियन यूनियन। तो देखिए नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले कि फूड एडिटिव्स रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस। तो देखिए इसके केस स्टडी है approval of new food additive by regulatory authorities. So they get description. These case studies explore the processes a food manufacturer undergoes to gain regulatory approval for a new food additives intended for use in processed food. To it covers the submission of safety data, toxicology studies, and regulatory assessment produced by agencies such as the FDA in the United States and EFSA in the European Union. ठीक है, तो इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ फॉर सेफ्टी इवैल्यूएशन एंड द रिस्क असेसमेंट ऑफ फूड एडिटिव्स। तो इसके अंदर क्या हुआ कि साइंटिफिक एविडेंस है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ द रोबस्ट साइंटिफिक डाटा टू सप्लाई सेफ्टी क्लेम्स एंड रेगुलेटरी सबमिशन है, वो यहाँ पर ये स्टडी किए गए और पब्लिक हेल्थ कंसिडरेशन यहाँ पर लिया गया कि बैलेंसिंग इनोवेशन in food product development with ensuring consumer safety and regulatory compliances यहाँ पर लिए गए, तथा जो मार्केट एक्सेस है, इम्पैक्ट ऑफ द रेगुलेटरी अप्रूवल ऑन मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस यहाँ पर लिया गया, जो कि जो फूड एडिटिव्स है वो काफी इंटेंडेड यूज के लिए किए करते हैं और काफी कम मात्रा में यूज किए जाते हैं, लेकिन जो फूड एडिटिव्स है वो काफी सारे फूड के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट राइट अप्रूवल at the right time for the right product for their continental or their market. So this is one of the important food additives regulatory approval process जो है एफडीए हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो हर जगह के लिए जो अलग अलग जो लेवल की जो अप्रोच होते हैं वो लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द यू नो व्हाट जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए, ठीक है, फॉर मार्केट एक्सेस। देखिए अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से, तो यहाँ पर हम देखने वाले कि कंप्लायंस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो देखिए यहाँ पर केस स्टडी है चैलेंजेस इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो यहाँ पर देखिए दिस केस स्टडी focuses on issues related to the integrity of organic food products and the certification schemes. It examines substances where the product were falsely labeled or misinterpreted as organic and despite not meeting organic standards. So देखिए यहाँ पर regulatory standards है, overview of organic certifications requirement and standards. Example like USDA है, ठीक है, एनओपी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस एंड फ्रॉड डिटेक्शन, तो स्ट्रेटजीज है and technologies used in the detect and prevent the organic food fraud such as supply chain audits and certification body oversights। ठीक है, तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई किया गया। तो कंज्यूमर ट्रस्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ fraudulent practices on consumer trust in organic labeling and certification systems। तो यहाँ पर तो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस है, द मेजर्स टेकन बाय रेगुलेटरी एजेंसीज एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज to strengthen the certification processes and ensure compliances with organic standards। तो यहाँ पर लिए गए, मतलब लिए गए, तब यहाँ पर फूड फ्रॉड का वो पकड़ा गया है। तो काफी सारे जो है लोग हैं जो ऑर्गेनिक का जो लोग है या फिर ऑर्गेनिक की जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लीट नहीं करती, और जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है वो काफी जैसे कि एक मिसबिहेव करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, कंज्यूमर के साथ, तो इसीलिए काफी सारा जो चीज़ है वो यहाँ पर आता है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन काफ़ी सारे फेक होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे सच भी होते हैं, जो आपको अगर आपको ऑर्गेनिक ही खाना है पीना है तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हाई एंड मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। देन देखिए इन टर्म्स ऑफ फूड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर हम फूड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टर्म में अभी हम जो केस स्टडी है वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेने वाले कि सी फूड इंपोर्ट रेगुलेशन, जो यूरोपियन यूनियन बैन ऑन इंडियन सी फूड के अंदर ऊपर है, जो यूरोपियन यूनियन ने बैन किया था। ये केस स्टडी है 2010 की, यूरोपियन यूनियन बैन ऑन द इंडियन सी फूड इम्पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड अभी हम पहले चेक करने वाले की, तो देखिए बैकग्राउंड है इन 2010 द यूरोपियन यूनियन imposes the ban seafood imports from India due to high levels of antibiotics found in shrimps and other seafood products। तो इसलिए किया था। और रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, द यूरोपियन यूनियन हैज अ स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स फॉर एंटीबायोटिक्स रेसिड्यूज इन फूड प्रोडक्ट्स एंड एट इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो किया गया है, दैट्स व्हाई जो है एंटीबायोटिक्स काफी हाई लेवल पर मिले थे। और इंपोर्ट इंस्पेक्शन किया गया, इसके अंदर निकला कि रिगरस इंस्पेक्शन ऑफ द टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट नॉन कंप्लायंसेस यहाँ पर दिखे गए।
और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस है उसके ऊपर क्या हुआ कि इम्पोजिशन ऑफ बैन, द बैन दिया गया था, यूरोपियन यूनियन imposed a temporary ban on the seafood imports from India until compliances with safety standards could be assured. यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स लिए गए कि इंडियन एक्सपोर्टर्स है had to enhance their testing quality and control measures to meet European standards, including better monitoring of antibiotic uses. ठीक है, तो reinstatement of imports किया गया था after a significant improvement and regulatory adjustment. The European Union lifted a ban allowing imports to resume. ठीक है, तो बाद में जैसे कि स्टैंडर्ड मीट किए गए इंडियन इंडियन एक्सपोर्टर से तभी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो अपना ऊपर से बैन हटाया गया। सो ये काफी जो मतलब बड़ी एक ही हुई थी, केस स्टडी हुई थी, वो भी आप इंटरनेट पे जाके सर्च आउट कर सकते हो। तो ये एक सी फूड मार्केट के ऊपर इंटरनेशनल प्लान हुआ था। और भी है कि फ्रूट एक्सपोर्ट जो हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने बैन किया था इंडियन मैंगोज के ऊपर। जो इंडिया के जो सीजन में जो मैंगोज आते हैं, ये जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2014 की यूरोपियन यूनियन बैन ऑन इंडियन मैंगोस के ऊपर हुआ था। ये हुआ था 2014 के ऊपर। यूरोपियन यूनियन बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोस ड्यू टू द कंटामिनेशन विद द फ्रूट फ्लाइज, which poses a risk to यूरोपियन एग्रीकल्चर। तो यूरोपियन एग्रीकल्चर के ऊपर वो रिस्क जो है फ्रूट फ्लाइज वो कर सकती थी, इसीलिए उसके ऊपर बैन लगाया गया। तो जो रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि पेस्ट कंट्रोल रेगुलेशन यहाँ पर लगाया गया। The European Union has a stringent regulations for the import of fresh produce to prevent the introduction of harmful pests, and phytosanitary standards requirement for the ensuring that exported produce is free from pests and diseases. ठीक है, तो regulatory responses यहाँ पर क्या दिया गया कि imposition of a ban, the European Union banned the import of Indian mangoes until effective पेस्ट कंट्रोल मेजर्स वेयर इम्प्लीमेंटेड। तो ये हुआ था और काफी सारे जो फार्मर्स है उससे और एक्सपोर्टर्स है वो काफी सारे वो हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे। मैं भी काफी ऐसे एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जो रत्नागिरी से है, जो हापुस जो अल्फांसो है उसका एक्सपोर्ट करते थे। तो दैट्स व्हाई इंपोजिशन ऑफ द बैन। तो देखिए करेक्टिव एक्शंस जो है यहाँ पर क्या दिए गए। तो इंडियन अथॉरिटीज एंड एक्सपोर्टर्स हैड टू इनहांस फाइटोसैनिटरी मेजर्स इंक्लूडिंग बेटर इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑफ बैन, ये बैन किया गया था आफ्टर कंप्लायंसेस विद द यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स वाज वेरीफाइड। The ban was lifted in 2015, allowing mangoes exports to resume। तो देखिए जो 2014 को बैन लगाया गया और 2015 में ये बैन हटाया गया, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स है वो इंडियन मार्केट में इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने ये मीट किए थे। नेक्स्ट है हम केस स्टडी देखने वाले कि इन टर्म्स ऑफ फूड टेस्टिंग। तो फूड टेस्टिंग के अंदर भी काफी सारे जो लोग हैं वो फंस जाते हैं। तो उसके बारे में हम देखने वाले कि मैगी नूडल्स कंट्रोवर्सी इन 2015 बैकग्राउंड। तो देखिए इंसिडेंट हुआ था, नेस्ले पॉपुलर मैगी इंस्टेंट नूडल्स वेयर फाउंड द कंटेंट्स आर द एक्सेसिव लीड ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी, तो उत्तर प्रदेश में मिला था एफडीए के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हेल्थ इंपैक्ट था कि जो हाईली पोजेस टू सीरियस हेल्थ स्पेशली टू चिल्ड्रन के ऊपर ये हाईली रिस्क था। और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस के अंदर क्या आ गई, टेस्टिंग मेथड बढ़ाई गई। तो सैंपल में टेस्टेड यूजिंग ऑटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है फॉर लीड कंटेंट एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स फॉर एमएसजी। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कि जो स्पेक्ट्रम्स के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन देखा जाता है कि क्या कितना कंटेंट इसके अंदर एमएसजी है और जो हार्मफुल कंटेंट है उसके लिए। और जो क्रोमेटोग्राफी है वो खास जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट के लिए किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी होते हुए वो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, एचपीएलसी होती है, एचपीटीएलसी होती है, तो टीएलसी होती है। तो ये क्रोमेटोग्राफी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है वो काफी यूज किए गए थे। मैं एफडीए महाराष्ट्र के अंदर भी मैंने काम किया, तो दैट्स व्हाई आई नो कि वहां पर कैसे किस तरीके से जो क्रोमेटोग्राफी है वो यूज की गई थी। तो देखिए मैं आई वाज ट्रेनी फ्रॉम एफडीए, तो मुझे काफ़ी सारी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लगी थी कि कैसे वहाँ पर टेस्टिंग किया गया था, कैसी सिस्टम में कौन से हाईली लेवल पे आ गए थे। तो काफ़ी एक रिस्क जनरेटिंग फैक्टर था तो उसके लिए भी। तो रेगुलेशन देखिए, रेगुलेशन के थ्रू क्या होता था, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई इशूड अ नेशन वाइड बैन ऑन मैगी नूडल्स रिकॉलिंग मिलियंस ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पैकेट जो रिकॉल किए गए थे, जो कि बहुत बड़ा लॉस था और बहुत बड़ा इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा ये था अपना क्या बोलते हैं उसके फूड रिकॉल। ठीक है, आउटकम्स क्या हो गया, आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग बाय accredited laboratories, Maggi noodles were found to be safe and introduced to the market. Nestle enhanced its quality checks and transparency in product labeling। तो ये हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट है पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो 2013 का ये बैकग्राउंड है।
तो इसके अंदर देखिए द इंसिडेंट द सेंटर ऑफ द साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी पब्लिश्ड अ स्टडी रिवीलिंग हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला एंड पेप्सी। तो देखिए हेल्थ इम्पैक्ट क्या हुआ था कि क्रोनिक एक्सपोजर हुआ था टू पेस्टिसाइड्स can lead to serious health issues and including cancer and neurological disorders through this thing. Then है regulatory responses, इसके अंदर क्या हुआ कि testing methods है the CSE used gas chromatography and mass spectrometry to detect pesticide residues, ये ठीक है। then regulations क्या हुए कि the controversy led to the establishment of the joint parliamentary committee JPCT and recommendations for the setting standards for pesticide residue in carbonated beverages, उसका एक ड्राफ्ट बनाया गया था। देन आउटकम्स क्या होगा, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो बीआईएस है डेवलप्ड अ न्यू नॉर्म्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स बट इन्फोर्समेंट रिमेंस अ चैलेंज। द इंसिडेंट जो हाइटेंड कंज्यूमर अवेयरनेस एंड डिमांड द सेफर बेवरेजेस। ठीक है, तो ये हुआ था पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जब मिले थे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तब 2003 के अंदर ये चीज हुई थी। और एक देखिए कि अडल्ट्रेशन इन एडिबल ऑयल जो 2019 का जो रिसेंटली जो हुआ था कुछ साल पहले ही, ये इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ था कि रिपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेशन इन एडिबल ऑयल्स with cheaper and sometimes harmful substances such as argemone oil and emerged from various states। ठीक है, तो ये जो argemone oil है ये काफी जो हार्मफुल होता है, इसके अंदर ये जो इफेक्ट जो केमिकल्स जो पाए जाते हैं वो काफी सारे हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। तो देखिए नेक्स्ट है द हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ अडल्ट्रेटेड एडिबल ऑयल्स कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इंक्लूडिंग ड्रॉपसी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जो हार्ट डिसीज होते हैं वो काफी सारे हो सकते थे और काफी सारे लोगों को हुए भी बिकॉज ऑफ अजीमोनियम ऑयल। देन रेगुलेटरी रिस्पांसेस के अंदर क्या आएगी, टेस्टिंग मेथड जो भी काफी बढ़ाई गई और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज यूज क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स टू डिटेक्ट अडल्ट्रेंट इन एडिबल ऑयल्स, इसके ऊपर देखा गया। और रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि एफएसएसआई मैंडेटेड regular testing and certifications of edible oils. The agencies also issued guidelines for manufacturers and distributors to ensure the purity of edible oils। ठीक है, आउटकम्स देखिए कि स्ट्रिक्टर इन्फॉर्मेंस ऑफ एंड पेनल्टीज were introduced for adulteration, public awareness and campaigns were launched to educate consumers about identifying pure edible oils। ठीक है, तो वो कहा गया। और जो ऑडिटर्स होते हैं, अभी अभी देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक ऑडिटर गया था एक और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हुआ था कि उन्होंने एक यूनिट को विजिट किया और उस जो ओनर था उस यूनिट का, उसके दो प्लांट थे, एक जगह एक प्लांट था और दूसरी जगह एक प्लांट था, लेकिन उसकी टेस्टिंग मेथड है वो खाली एक ही जगह पर थी। तो जो एफएसएसआई ने जो उसका जो पूरा प्लांट था वो डिस्क्वालीफाइड किया था और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो टेस्टिंग मेथड है, लेकिन एफएसएसआई कहती है कि आपको अगर अगर आपकी ऑयल की अगर कोई फैक्ट्री है तो आपको आपकी जो टेस्टिंग मेथड्स है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो आपको इन हाउस ही रखनी पड़ती है। आप बाकी कहाँ पर रख नहीं सकते। तो ये कब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो ये याद रखना कि इन हाउस ही आपको एडिबल ऑयल्स की जो ये है टेस्टिंग मेथड करवानी पड़ती है। तो ये था अडल्ट्रेशन इन एडिबल ऑयल 2019। एंड देखिए नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ सेफ फूड प्रैक्टिसेस। तो देखिए सेफ फूड प्रैक्टिसेस के अंदर एक चीज ये आती है कि स्ट्रीट फूड जो है सेफ्टी इनिशिएटिव इन दिल्ली 2011 में हुआ था। जो बैकग्राउंड क्या है कि इंसिडेंट हुआ था कि स्ट्रीट फूड स्टेपल इन दिल्ली वाज फाउंड टू हैव हाई लेवल्स ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हुआ था। यहाँ पर हेल्थ इम्पैक्ट क्या हुआ था कि कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड स्ट्रीट फूड लेड टू फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ फूडबॉल इलनेसेस यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर सेफ फूड प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दिया गया। द गवर्नमेंट in collaboration with the National Association of Street Vendors, जो नासवी है, उसके थ्रू and FSSAI launched the training programs for street food vendors on hygiene and sanitation practices and infrastructure improvement, जैसे कि provision of a better infrastructure such as a clean water supply and waste disposal facilities was implemented। Certification दिया गया street vendors को to have completed and training received hygiene certification boosted consumer confidence। Outcome क्या होगा, the initiative resulted in a significant improvement in food safety standard among street vendors and reducing the incident of foodborne illnesses। यहाँ पर हो गया और स्ट्रीट फूड वेंडर्स है उनको ये टेक्निक और जो ट्रेनिंग है वो दी गई और उसकी वजह से जो दिल्ली का स्ट्रीट फूड है वो काफी सारा सेफ बन चुका उसके बाद में। देखिए उसके बाद है सेफ फिश कैंपेन इन केरला हुआ था 2018 में। इंसिडेंट है डिटेक्शन of formalin in fish across several Indian states, including Kerala, raised concern about the food safety seafood।
इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि फॉर्मेलिन इज कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर होता है, एंड इट्स प्रेजेंस इन फूड पोस्ट सीरियस हेल्थ रिस्क। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द सीरियस कंसर्न था इसके अंदर। फॉर्मेलिन जो ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर कोई अगर एनिमल बॉडी हो गया, अगर उसको प्रिजर्व करना है तो फॉर्मेलिन यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉर्मेलिन जो होता है वो आप जानते ही हो कि किस किस लेवल पे यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन इसका हेल्थ इंपैक्ट है वो सीधा सीधा कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। देन सेफ फूड प्रैक्टिसेस, तो देखिए रैपिड टेस्टिंग, द केरला गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रैपिड टेस्टिंग किट्स टू डिटेक्ट फॉर्मेलिन इन फिश एट मार्केट्स एंड एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। देन हुआ था पब्लिक अवेयरनेस, यहाँ पर एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स वेर लॉन्च टू एजुकेट द पब्लिक एंड फिश वेंडर्स अबाउट द डेंजर ऑफ फॉर्मेलिन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कंटामिनेटेड फिश। तो यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए थे, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड द मॉनिटरिंग ऑफ फिश मार्केट्स एंड सप्लायर वेयर इंटेंसिफाइड। आउटकम्स क्या हुए इसके अंदर से, द कैंपेन सक्सेसफुली इन रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेलिन इन फिश एंड रिस्टोरिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन सी फूड सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर केरला के अंदर ये सारी चीजें हुई थी, और काफी सारा जो अवेयरनेस है इसके थ्रू क्रिएट किया गया था, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे इसको डिस्कार्ड करना है। देन है 2015 का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से फूड, जो फ्रूट्स एंड एफएनवी का जो सेफ्टी इन आंध्र प्रदेश हुआ था, उसका इंसिडेंट क्या हुआ था कि हाई लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेयर रिपोर्टेड पोजिंग हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हेल्थ इंपैक्ट, जैसे कि क्रोनिक एक्सपोजर हुआ था टू पेस्टिसाइड्स कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इंक्लूडिंग कैंसर एंड एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन भी इसके थ्रू हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेफ फूड प्रैक्टिसेस हुई थी, जैसे कि ट्रेनिंग फार्मर्स को दिया गया था, द स्टेट गवर्नमेंट अलाइन विद एग्रीकल्चर एंड द यूनिवर्सिटीज provided training to farmers and integrated pest management जो IPM है उसके अंदर, और practices to reduce pesticides से उसका यूज कैसे करना है उसके बारे में बताया गया था। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर दी गई थी, और इंसेंटिव were provided to farmers adopting organic farming methods, reducing reliance on chemical pesticides, ठीक है। Then consumer awareness. Campaigns were conducted to reduce consumer on washing and peeling techniques to reduce pesticide residues. ठीक है। Then outcomes क्या हुआ इसके अंदर, the practical practices lead to notable decreases in pesticide residues in fruit and vegetable, promoting safe consumption, ठीक है। तो इसके बाद ये आउटकम हुआ, और काफी सारा सेफर जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल आंध्र प्रदेश के अंदर 2015 के बाद बन गया। तो देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड टू केस स्टडीज एग्जांपल, जैसे कि हाउ डिड द आउटब्रेक अफेक्ट द पीनट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर ट्रस्ट इन द पीनट प्रोडक्ट, जो आप जानते हो ये यूएस के अंदर हुआ था, ठीक है। हाउ डिड द प्रेजेंस ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी मैगी नूडल्स कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेटरी रिस्पांसेस। तो आप जानते हो रिकॉल वगैरह हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। ये भी केस हुई थी 2000, ठीक है, आप जानते हो रिसेंटली केस था। देन हाउ डिड द 2015 की how did the discovery of high pesticide residues impact consumer confidence and market dynamics? तो देखिए जो हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो इम्पैक्ट किया था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश की केस थी 2015 की, तो ये यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। व्हाट स्टेप्स कैन कंज्यूमर टेक्स टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड अडल्ट्रेटेड एडिबल ऑयल, ठीक है, जो 2019 की केस थी एडिबल ऑयल की, आर्जेमिनॉन की। तो ये यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। What are the labeling requirements of a GMO derived product in the European Union and how do they impact consumer choices? जो यूरोप की केस थी उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, और आप वापस जाके भी आप वो जो केस स्टडी है वो वापस जाके भी आप पूरा का पूरा ये कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये थी कि ये भाई वो केस जो जीएमओ की जो है यूरोपियन इसके अंदर, और देखिए आप ये स्टडी कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड सागर शिर्के, एंड प्लीज like, share and subscribe this video, and please share this video with your friends and families and the food technicians who are enthusiasts to food safety and standards, इंटरनेशनल एंड इंडियन मार्केट्स के लिए जो करना चाहते हैं। तो काफी सारे इन्फॉर्मेशन अभी इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड सागर शिर्के। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Please like, share, and subscribe this channel. Please like, share, and subscribe this channel. Thank you. Thank you so much for watching this video again and again. Thank you.